which is the most successful predator in the world? आप सबको शुभ सायंकाल। शिकार करने में सबसे काबिल प्राणी कौन सा है? इस गाने को देखते हुए सोचिए। Got the answer? If yes, tell me. जवाब सूझा? तो बताइए। आपके लिए एक हिंट। अभी जो गाना आपने देखा उसी में क्लू है। गुड इवनिंग।
क्या आप जानते हैं उसके अपने शिकार को पकड़ने का सक्सेस रेट सिर्फ 30% है। तेंदुआ और बाघ दोनों भयंकर जानवर हैं। चीते की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन शिकार करने में उनकी सफलता दर केवल 25% है। चील आकाश में काफी ऊंचाई पर उड़ती है, बिजली की गति से झपट्टा मारती है और मुर्गियां, छोटे पक्षी, गिरगिट जैसे अपने शिकार को चुन लेती हैं। लेकिन इसकी सफलता दर केवल 20% है। Yes, some of you guessed it right. The most successful predator in the world is the dragonfly. Can you believe this? The success rate of dragonfly in catching its prey like mosquitoes and other small insects is an amazing 95%. ఎక్కడ 95%, ఎక్కడ 30%. తూనీగకు ఇంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని మీరెవ్వరూ ఊహించలేదు కదా. తూనీగా తూనీగా. Welcome to the epic. ड्रैगनफ्लाई अपने पंख ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर और उधर फड़फड़ा सकती है। दुनिया में कोई भी एयरक्राफ्ट ड्रैगनफ्लाई जितनी सफलतापूर्वक उड़ान नहीं भर सकता। ड्रैगनफ्लाई की आंखें 360 डिग्री में देख सकती हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? इसी प्रेरणा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कारों के सेंसर्स डिजाइन किए गए हैं। वो जिस स्मॉल ऑर्गेनिज्म को पकड़ना चाहती है, उसकी दिशा और स्पीड को मिलीसेकंड्स में एस्टिमेट करके अपनी फ्लाइट डायरेक्शन को चेंज करते हुए डेडली प्रेसिशन के साथ उसे पकड़ने के लिए अपने दिमाग और पंखों का इस्तेमाल करते हुए उस स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ड्रैगनफ्लाई ही हासिल कर सकती है। Life is not a bed of roses for many. For those born with a golden spoon, dopamine high brings all sorts of problems, and that is a different story. జీవితంలో సమస్యలే లేకపోతే జీవితమే ఒక సమస్య అయిపోతుంది. అదే డోపమిన్ హై మాయా. 100 में से 90 लोग रोज समस्याओं का सामना करते ही रहते हैं। समस्याओं का सामना करने और हर संकट को अवसर में बदलने के लिए व्यक्ति को सही कौशल और सही दृष्टिकोण से संपन्न होना चाहिए। Only those who turn adversities into opportunities lead a successful life. And that is the story of the dragonfly. Dragonflies have been existing in this world for the last 100 million years. Human beings came into existence just 4 million years ago. కీటకాలు, మనుషులు, ఏ జీవజాతైనా మనుగడ కోసం జీవన పోరాటం తప్పదు. అదే సృష్టి రహస్యం. కాబట్టే ఓడిపోవడం అంటే ఆగిపోవడం కాదు. అడుగు అడుగు వెయ్యనిదే అంతరిక్షమే అందేనా. ప్రయత్నమే మొదటి విజయం. అడుగు అడుగు వెయ్యనిదే అంతరిక్షమే అందేనా. పడుతూ పడుతూ లేవనిదే పసిపాదం పరుగులు తీసేనా. మునిగి మునిగి తేలనిదే మహాసంద్రమే లొంగేనా. కరిగి కరిగి వెలగనిదే కొవ్వొత్తి చీకటి
చీకటిని తరిమేనా ముగింపే ఏమైనా మధ్యలో వదలొద్దురా నీ సాధన ప్రయత్నమే మొదటి విజయం ప్రయత్నమే మన ఆయుధం ప్రయత్నమే మొదటి విజయం ప్రయత్నమే మన ఆయుధం వెళ్ళే దారుల్లోన రాళ్ళే అడ్డొస్తున్నా అడ్డును కాస్త మెట్టుగా మలచి ఎందుకు ఎదగాలి చేసే పోరాటంలో రక్తం చిందేస్తున్నా అది ఎర్ర సిరాగా మీ చరితను రాస్తుందనుకోవాలి అడుగంటూ వేసాక ఆగకుండా సాగాలిరని సాధన ప్రయత్నమే మొదటి విజయం ప్రయత్నమే మన ఆయుధం ప్రయత్నమే మొదటి విజయం ప్రయత్నమే మన ఆయుధం There is nothing like failure in life. Every failure is an opportunity to understand yourself in a better way. Failure is the greatest teacher in the world. क्या आप जानते हैं मधुमक्खियाँ शहद पैदा करने के लिए कितनी मेहनत करती हैं? शहद की एक बूंद के उत्पादन के लिए आवश्यक अमृत के लिए कभी-कभी वे सैकड़ों फूलों पर मंडराती हैं। After they suck the nectar, they store it into the stomach and pass this nectar to the other worker bees. Then they pass this nectar to the honeycomb cells. They fan their wings to evaporate the excess moisture from the nectar. Then they seal the honeycomb cell with wax. Each worker bee works for an average 12 hours a day. दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कड़ी मेहनत न करता हो। किसी और की कमाई मुफ्त में मिले और जिंदगी भर हाथ पर हाथ धरकर बैठने की सोच सिर्फ इंसानों की होती है। Hard work is the fuel for happy life. लेकिन कई लोग कोशिश भी नहीं करते। वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे। पर जब जीत का जुनून हो तो हार से क्या डरना। जलना बुझना बुझ के जलना मरना जीना मर के जीना मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने छीना गिरना उठना उठ
के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की खड़ी है कि बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। सूरज आँख दिखा ले आज, कल तेरी आँख झुकनी है, तेरे अंदर है जितनी आग, यहाँ उससे भी दुगनी है। सूरज आँख दिखा ले आज, कल तेरी आँख झुकनी है, तेरे अंदर है जितनी आग, यहाँ उससे भी दुगनी है। तलवार हाथ में है तेरे, बेईमान सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। తేనెటీగల్లో వర్కర్ బీస్, డ్రోన్స్, క్వీన్ బీస్ అని ఉంటాయి. కొన్ని తేనెటీగలు రాణి తేనెటీగలుగా ఎలా మారుతాయో మీకు తెలుసా? The worker bees choose a few larvae to become potential queens and feed them with a special diet called royal jelly. This diet triggers the development of queen characteristics. You want your children also to become kings and queens, right? But with what royal jelly will you feed them? Think about it. कोई भी जन्म से सुभाष चंद्र बोस या अंबेडकर या अब्राहम लिंकन नहीं बनता। यह माता पिता और शिक्षा की है
जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। So, dear parents, it's all about parenting. Do you know parents of today all over the world can be classified into 5 types? Hands off parent, Hitler parent, helicopter parent, Yashoda parent, and Obama parent. Watch the unfolding scenes and decide to which category you belong. Your complete involvement matters because this is a serious parenting class. Here we go. Tuniga. As you sow, so you reap. An epic on parenting. Here comes Koteshwar Rao, a perfect example of hands-off parent. Status. Life is too short. Let's enjoy. आज की रात है, कल से वही से अफे है, जी भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे हैं, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ना कहना कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के ना चले वे भी नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। नाचन हित में जारी जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को करते बाय बाय, माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है जिसकी बम में है दम। मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है, जुम्मी चूकी नोक पर रखी दुनिया सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। अजी सुनिए तो। अरे क्या है तेरी परेशानी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपने खुद से फैसला कर लिया है कि आप हमारा रेजिडेंस चेंज करेंगे और अब दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं, लेकिन नई जगह में बच्ची के स्कूल का कुछ सोचा है? कहाँ जा रहे हैं हम? कोकापेट गोल्डन माइन, जहाँ चारों ओर बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। देखिए, बच्ची आके स्कूल में अच्छे से सेटल हो गई है, रोज खुशी खुशी स्कूल जाती है, घर आने के बाद मेरा हाथ भी बटाती है। बेकार स्कूल, तेरी बेकार सोच।
स्टेटस स्टेटस। अब मैं कोटेश्वर राव हूँ, कोटी नहीं। 10 करोड़ का खर्चा करके स्काई विला, बेबी के लिए इंटरनेशनल बैचलरेट स्कूल में सीट। झुकेगा नहीं मैं। स्टेटस स्टेटस। And here is Jaya Prakash, the Hitler parent. ए गधे, क्या है रे ये? क्या है? मार्क्स लिस्ट है डैडी। अच्छा, मैं तो सोचा ओलंपिक गोल्ड मेडल है। बेवकूफ, इसे मार्क्स कहते हैं। क्यों पैदा हुआ रे मेरे राजा? ऐसा पढ़े तो आईआईटी में सीट आता क्या? नहीं, आईआईटी की गेट पर चाया चाया गरम गरम चाया बोलकर बेचने वाला है तू। जा कहीं जाकर मर। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसका नहीं, पहले तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। जब तक उसको 100 में से 90 मार्क्स नहीं आ जाते, तुम दोनों का फूट कट। ये कैसे रूल्स हैं आपके? ओए, यहाँ का मैं ही बादशाह हूँ, मेरा ही हुक्म चलेगा। यहाँ का मैं हूँ किंग और मेरे चलते हैं रूल्स, और उन रूल्स को अपने हिसाब से बदलता रहता हूँ मैं, तो उन्हें चुपचाप फॉलो करो। अगर इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश भी की तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ताश की तरह फैला दूंगा। हुकुम, टाइगर का हुकुम। अब तीसरे पेंटिंग स्टाइल के बारे में बात करने से पहले चलिए ये गाना देखते हैं।
माँ बच्चे का रिश्ता कितना प्यारा है, आपने देखा ना? मुर्गी वैसे तो बहुत डरपोक होती है, लेकिन अपने चूजों के लिए वह कुत्तों से भी लड़ जाती है, बांस पर भी भारी पड़ जाती है। इंसान भी चूजों वाली मुर्गी से डरता है। यही है माँ का प्यार। A giraffe delivers its baby in a standing position. In other words, calf, that is baby giraffe, falls down from a height of 6 to 7 feet. As if that is not sufficient, within minutes, the mother giraffe kicks the baby, and as a result, the baby giraffe falls at a distance of 10 to 20 feet. Obviously, the baby is quite hungry and struggles its way to the mother. But instead of feeding the baby, mother giraffe once again kicks it. Do you wonder why? Places where giraffes live are full of predators like lions and tigers. So, the chances of such predators attacking the baby giraffe are quite high. Have you understood? The mother giraffe is training its baby to be on the ready to run position at any time. What a perfect parenting style. लेकिन इंसान कुछ ऐसे भी है जिनके लिए उनके बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, वह दूध पीते शिशु ही लगते हैं। यही होते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। Here comes सूर्यकांत अम्मा जी। मम्मी मम्मी आप मत खिलाओ, मैं खुद खाऊंगा। मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। अरे अरे अरे, मेरा नन्ना मुन्ना प्यारा सोना, तू इतना बड़ा हो गया है, तू जो भी खाता है उसका आधा नीचे गिरा देता है। ना रे मुन्ना, मैं ही खिलाऊंगी। मेरा राजा बेटा, तू मेरा एक लौता बेटा है रे। तेरे पापा वो बदमाश सालों पहले हिमालय चला गया, संन्यास ले लिया करते। मम्मी मम्मी कल संडे है ना, मैं देर से उठूंगा। ना रे मेरा राजा बेटा, 5 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर फिर योगा करना होगा। वीकडेज में आपका शेड्यूल फॉलो करता हूँ ना मम्मी, लेकिन संडे को भी। अयो, ये क्या बोल दिया तूने? मैं तो सिर्फ तेरे लिए ही जी रही हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुझे डॉक्टर बनना है, महाराजा जैसे जिंदगी जीना मेरा बेटा। Children need love, affection and compassion. However, one should know where to draw the line. One should shower love and affection on their children, but it should be within the appropriate limits. Look, here comes a parent who knows how to love her child and also where to draw the line. राम जी की
भगवान ही आपके पुत्र क्यों ना हो, पर माँ उन्हें लाड प्यार के साथ साथ सही हद और अच्छी बुद्धि देते हुए एक डिसिप्लिन के साथ पालती है। मानते हैं ना? ये रही रियल लाइफ यशोदा मैया। सुरेखा, गुड बॉय, गुड बॉय। थैंक यू मम्मी। हाय सुरेखा। सुरेखा, तुम्हारा छोटा बेटा कितना प्यारा बोल रहा है, अच्छे से खेल रहा है, खाना भी खा रहा है। क्या उम्र है इसकी? 2 साल अभी पूरे हुए हैं। हमारा तो 3 साल 8 महीने का हो गया है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। हमेशा सेल फोन, अगर वो ना दे तो खाना भी नहीं खाता, चीजें फेंकता है। ऐसा क्यों भला? गटर में गांजे के बीज बोएंगे तो तुलसी का पौधा तो नहीं उगेगा ना। जानकी, एक बात कहूँ, हमारे बच्चे हम जैसे ही होते हैं। बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। क्या आप जानती हैं, 2 साल की उम्र में बच्चों के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर नेटवर्क बन जाता है। Janki, the more we interact with the children, the more we speak to them and the more we let them speak. This neural network gets strengthened. At our home, both my in-laws stay with us. My child is kept engaged all through the day. We take him out as much as possible, show him the sky, the clouds, the trees, the birds, etc. Cell phone has a damaging effect on brain. I'm sorry to say, Janki, but your child is suffering from virtual autism. आप सभी बराक ओबामा को तो जानते ही हैं। Even when he was the president of America, he used to spend quality time with his daughters. After all, where there is a will, there is a way. Here comes Mr. Mahesh, a perfect example of Obama parent. अमेरिका के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए compete कर रहे विवेक रामास्वामी अपने बच्चों की देखभाल करती आया को साल के 80 लाख सैलरी देने के लिए तैयार है। नानी दादी की अहमियत समझ में आई आपको? अरे मैं कह रहा हूँ, कम से कम अपने बच्चों के लिए अपने माता पिता सास ससुर को घर आने दे। बच्चों के मेंटल एनरिचमेंट के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए हमेशा कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। चाहो हम जितना भी कमा ले, बच्चों के साथ बिताया पल ही यादगार रह जाता है। नम्रता, बताओ दुनिया में सबसे प्यारी जगह कौन सी है? सबसे प्यारी जगह? आप ही बोलिए ना। कश्मीर। इस बार की संक्रांति हॉलिडेज में हम सब कश्मीर जा रहे हैं। पापा, मैं बोलूं सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, तेरे पापा, पापा, तेरे पापा।
नैया ने पूछा कि भैया से सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा पापा तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा तेरे पापा। पापा तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा। पापा मेरे पापा। पापा मेरे। Parents, got it? 5 parenting styles. Koteshwar Rao, hands up parent. Jaya Prakash, Hitler parent. Suryakant Amma, helicopter parent. Surekha, Yashoda parent. Mahesh, Obama parent. Let's move ahead with the movie. सुनिए, स्टेटस स्टेटस कहकर बच्ची को आईबी स्कूल में डाल दिए। परसों तक सेलफोन छूती तक नहीं थी, जंक फूड नहीं खाती थी, अब तो पूरा रिवर्स। अरे पढ़ने के लिए कहूँ तो मुझ पर ही चिढ़ जाती है। बच्चों की पैदाइश ही हमारी मर्जी होती है, लेकिन सेल मत देखो, जंक फूड मत खाओ, अच्छे से पढ़ो। ये चीप मिडिल क्लास मदर की तरह नाक में दम मत करो। बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप अच्छे से बड़े हो जाते हैं। अरे हम कहाँ हैं अभी? कोका पेट गोल्डन माइन में। स्टेटस स्टेटस। और तुम अब भी उन चीप लोगों के साथ पार्टीज। ये क्या सुरेखा, अपने बेटे को काम वाले के बच्चे के साथ खेलने दे रही हो? उनकी आदतें इनको आ गई तो? जानकी गलत, ऐसा मत बोलो। कोई भी काम छोटा नहीं होता। दुनियादारी से दूर अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ स्काई विला, स्टार होटल, हवाई जहाज की परवरिश दे तो उन्हें असली जीवन का सार कभी भी समझ में नहीं आएगा। We must inculcate social and emotional intelligence among children right from a young age. We let our children interact with people of all social strata. हम क्या करते हैं मालूम? हमारा पूरा परिवार बच्चों को लेके कभी इस जगह उस जगह जब भी वक्त मिले घूमर 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 घूमे रे।
जी आओ